Hello everyone, welcome back to Study Center NEET Supreme. तो ड्यू टू सम इश्यूज कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, बट एज यू विल रिमेंबर कि हम कर रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, दैट इज द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी. राइट. तो जैसा कि आपको याद होगा, इन प्रीवियस वीडियो यानी परसों जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें आपने पढ़ा था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड द पार्ट्स विच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ एन इम्पल्स. राइट. तो हमने सबसे पहले देखा था, यहाँ पे आप देखेंगे ज़रा, तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूरल सिस्टम्स के बारे में दिया हुआ है. ह्यूमन नर्वस न्यूरल सिस्टम, एक्चुअली नर्वस भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था जो कि 2 दिन पहले अपलोड हुई थी. तो उसमें हमने पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर का. साथ ही जाना था कि किस तरीके से बॉडी में दो तरह के कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है पूरी जो अपनी बॉडी को है कंट्रोल कर पाते हैं और सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं. Right, then we had moved on to the different neural system in humans specifically, and उसके बारे में जाना था कि वो different जो neural systems है वो किस तरीके से individually work करते हैं और उनका function क्या होता है basically. Right, then we had moved on to neuron as the structure and function of neural system, यानी न्यूरॉन जो सेल होता है हमारा न्यूरल सेल, उसके बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना था, जो बेसिकली 3 होते हैं. The dendrite, cyton, and the axon are the basically 3 parts which contain the different cell organelles. And the dendrite is the part which takes impulse from the other cells, and axon जो है उसे next cell तक pass on करता है. We had learned about the different glial cells, including the oligodendrocytes, Schwann cells, astrocytes, and all the different type of cells. You can find the link of that video in the description below. एंड उसके बाद हमने जाना था श्वान सेल्स जो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं, एंड नोड ऑफ रेनवियर के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन दिस वीडियो. So let's begin with that. So as you see here, generation and conduction of nerve impulse. So we are going to learn about how the how the nerve impulse that is being conducted from the CNS or the PNS from different organelles of organs of our body are being generated in that specific part, and how are they being transported from one part of the body to the other part. Like we just have a stimulus at any part of the body, like हमारे हाथ को कोई चीज़ टच करती है और we feel pressure of something on our hand, or it's simply like we touch a hot thing and then we remove our hand immediately. Why is that? Because the message or the impulse that something has touched our hand, or some hot object has touched our hand, has run straight to our spinal cord, and the message that we should withdraw our hand from there has come just in the fraction of second. We need to understand how this whole process is going on, यानी कि हमें ये समझने की ज़रूरत है. We are going to learn कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है एक जगह से, यानी बॉडी के एक पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर किसी भी दूसरी पार्ट तक नर्व इम्पल्स का जाना एंड देन वहाँ से वापस आना. राइट. तो हम यहाँ पे रीड करना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपको पता होगा, हम सबसे पहले एनसीईआरटी के लाइंस को समझते हैं एंड उनका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट the NCERT and the NTA people want us to know. Right. So starting with neurons are excitable cells. This is the most important property of a neuron. बॉडी में 2 ही तरह के सेल्स ऐसे होते हैं जो कि excitable होते हैं. First the neurons and second the muscles. Only these 2 types of cells are excitable. Or neurons are the cells which get excited for a longer duration and continuously, while muscles are excited for a shorter duration and for a short period of time. ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे नर्व्स की. Because their membranes are in a polarized state. Now what is a polarized state? A polarized thing is हम किसी चीज़ को पोलराइज्ड तब कहते हैं जब उसमें और उसके एनवायरनमेंट में या फिर किसी दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो. नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एज यू वुड आस्क. तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के पूरे झंझट को ही हटा दें तो वी सिंपली एज्यूम कि देयर इज सम चार्ज डिफरेंस. लाइक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है 2 यानी +2, देन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है +5, देयर इज द चार्ज डिफरेंस ऑफ +3. तो यानी दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी द
द थिंग्स, अगर उन दोनों को साथ में रखा जाए तो वो एक पोलराइज्ड स्टेट होगी. सेम विद द मेम्ब्रेन. इफ आई ड्रॉ दिस इज द एक्सॉन और एनी और यू कैन से इवन द डेंड्राइट, मोस्टली इट इज स्टडीड इन द एक्सॉन. आप याद रखेंगे कहीं भी हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम एक्सॉन की बात करेंगे, क्योंकि डेंड्राइट में कंडक्शन की कोई जरूरत नहीं होती. दैट इज वेरी शॉर्ट पार्ट. एक्सॉन की अगर ये मेम्ब्रेन है तो ये हो गया इनर पार्ट एंड ये हो गया आपका आउटर पार्ट. सो अगर इन दोनों की बात करें तो होता क्या है, जो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, जो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, that has more negative charge and the outer side of the membrane. outer side क्यों? क्योंकि बाहर भी आपको पता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं. there are some fluids which are present outside the cell and there is some fluid जिसे हम की साइटोप्लाज्म कहते हैं, present inside the cell. तो जो inside of the cell है वो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है. क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं. सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पे होते हैं Cl माइनस आयंस, HCO3 माइनस, ये सब आयंस प्रेजेंट होते हैं. साथ में कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं. आपको पता होगा कि कुछ प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. चार्ज डिपेंड करता है कि उसमें COO माइनस ग्रुप है या NH4 प्लस या NH3 प्लस ग्रुप है, राइट. तो अंदर जो है ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, बाहर जो फ्लूइड है उसके अंदर Na प्लस यानी सोडियम आयन जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं इन कंपैरिजन टू अंदर. अंदर भी कुछ Na प्लस होते हैं बट उनसे ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होते हैं. अब बाहर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज यानी कि Na प्लस आयन्स हैं, तो वो जो है क्या करेंगे, बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, राइट. अब नाउ यू कैन सी कि अंदर जो है बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, बाहर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है. नाउ दिस चार्ज डिफरेंस क्रिएट्स अ पोलराइज्ड स्टेट इन द मेम्ब्रेन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूट्रल मेम्ब्रेन. न्यूट्रल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये अगर मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आने और जाने में कुछ स्पेसिफिक आयंस के. ये हो सकते हैं आपके वोल्टेज गेटेड या फिर लाइगेंड गेटेड. वोल्टेज गेटेड का मतलब होता है कि जब उस जगह पे, उस मेम्ब्रेन के उस स्पेसिफिक पार्ट पे जो वोल्टेज है वो बढ़ते बढ़ते उतना स्पेसिफिक हो जाए या फिर कम होते होते उतना स्पेसिफिक हो जाए, उनका वो स्पेसिफिक वैल्यू होती है उतना हो जाए तो वो गेट ओपन या क्लोज होता है. लाइक फॉर अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन द रेस्टिंग पोटेंशियल इज -70 मिली वोल्ट. इस नंबर को आप याद रखेंगे. द रेस्टिंग पोटेंशियल RSP is equal to -70 millivolt. This you are going to remember. This is really important. Resting potential of a membrane is -70 millivolt. यानी कि जो आपकी membrane है at rest is present at -70 millivolt. यानी कि इसे अगर -70 millivolt का एक स्टिमुलस मिल जाए तब इसके ऊपर जो है इतना वोल्टेज आ जाएगा कि इसके सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो चालू हो जाए. यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम का इफ्लक्स और इनफ्लक्स रेस्पेक्टिवली स्टार्ट हो जाए. नाउ हम दोबारा से NCERT को रीड करेंगे. When a neutron is not conducting any impulse, when a neuron is not conducting any impulse, यानी कोई impulse नहीं है, stable state में है, वो naturally है, ऐसा बहुत कम होता है but still ऐसा कोई अगर न्यूरॉन है यानी कि resting पे है, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion. जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि बाहर की जो यानी एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी स्पेस होती है उसके अंदर बहुत सारे Na प्लस आयंस होते हैं. तो अगर डिफ्यूजन अलाउड होता है रेस्टिंग में भी तो क्या होता है, बहुत सारे Na प्लस अंदर आ जाते हैं, K प्लस बाहर चला जाता और बाहर और अंदर का जो आपका चार्ज है वो सेम हो जाता. सो देयर वुड नॉट हैव बीन एनी डिफरेंस. लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेस्टिंग जो स्टेट में होता है जब आपका न्यूरॉन, तो जो सोडियम है वो इम्परमिएबल होता है, यानी सोडियम का डिफ्यूजन अलाउड नहीं होता है. हाउएवर पोटेशियम का जो आप कह सकते हैं डिफ्यूजन है वो अलाउड होता है. तब भी आप कह सकते हैं कि जब पोटेशियम भी तो पॉजिटिवली चार्ज आयन है और अगर उसका डिफ्यूजन अलाउड होता है तो फिर जो बाहर और अंदर का चार्ज है वो सेम क्यों नहीं हो जाता डिफ्यूजन के थ्रू. ऐसा नहीं होता क्योंकि जो पोटेशियम आयन है दैट इज़ वेरी लार्ज इन साइज और वो अगर किसी जगह को छोड़ के जा रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरा आयन आना ज़रूरी है. लेकिन सोडियम का जो पंप है वो तो ऑफ है तो उसकी जगह कोई और आयन नहीं आ सकता, इसलिए पोटेशियम भी ज़्यादा परमेबल नहीं होता है. सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स. नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स थे जैसे कि मैंने आपको बताया था अंदर होते हैं प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, वो भी यानी बाहर जो अंदर तो बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं ही लेकिन जो बाहर पड़े हुए हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन वो भी डिफ्यूज इन नहीं कर सकते. यानी कि जो अंदर और बाहर का जो
चार्ज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मेंटेन होकर रहता है व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्टिंग स्टेट। कॉन्सिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ K+, यानी अंदर K+ का तो हाई कंसेंट्रेशन होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का भी लो कंसेंट्रेशन ऑफ Na+। अब आप ये सोचिए कि आप कह रहे हैं कि अंदर K+ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे K+ कितना भी ज्यादा हो, उसका साइज इतना बड़ा है कि वो कभी इतने ज्यादा नहीं हो सकते कि वो Na+ से ज्यादा हो, राइट। बाहर अगर 50 Na+ होंगे तो अंदर हो सकता है 10-20 K+ हों, लेकिन फिर भी Na+ और K+ का चार्ज सेम है। अगर बाहर के Na+ ज्यादा होंगे तो चार्ज बाहर ज्यादा होगा, राइट। तो इसीलिए बाहर जो है, in contrast, the fluid outside the axon contains low concentration of K+, a high concentration of Na+, and thus form a concentration gradient। यानी कि बाहर जो है बहुत सारे Na+ होते हैं और अंदर बहुत सारे K+ होते हैं, तो इसकी वजह से concentration gradient बनता है कि यानी जब भी डिफ्यूजन अलाउड होगा Na+ धड़ाधड़ अंदर और K+ धड़ाधड़ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, राइट। समझ रहे हैं आप? These ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of ion of sodium-potassium pump, which transports 3 Na+ outside for 2 K+ into the cell। यानी कि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है शुरू में बना कैसे होगा, ये एक्चुअली बनाया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। सो जब भी आप देखें कहीं भी पंप वर्ड लिखा हुआ हो, पंप है PUMP, तो पंप का मतलब होता है जो एनर्जी यूज करे, राइट। पंप का मतलब है जो एनर्जी को यूज करे। हैंड पंप है तो वो हैंड की एनर्जी को यूज कर रहा है, राइट। तो जो पंप है उसका मतलब होता है एनर्जी को यूज कर रहा है। तो अगर सेल में कोई पंप है तो वो एनर्जी कौन सी यूज करेगा? ATP वाली। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो ATP को यूज करके जो है 3 Na+ को बाहर निकालता है अगर अंदर जितने भी हैं, एंड 2 K+ को बाहर से अंदर ले लेता है, यानी कि अंदर K+ के कंसेंट्रेशन को बढ़ाता है और बाहर जो है K+ के कंसेंट्रेशन को कम करता है। रिवर्स में देखें तो बाहर Na+ के कंसेंट्रेशन को बढ़ाता है और Na+ की कंसेंट्रेशन अंदर कम करता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट था Na+ एंड K+ का वो क्रिएट किया गया होगा। As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge the inner surface becomes negatively charged। इस तरीके से आपने देखा कि जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, एक्चुअली मैंने पहले इसलिए एक्सप्लेन किया था क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ब्लंडरिंग सी है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि बाहर Na+ ज़्यादा होने की वजह से और अंदर नेगेटिवली चार्ज और K+ होने की वजह से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक दी हुई है जिसके अंदर जो है लेट मी शो यू। आप ये रेड और पिंक वाला ये एरिया हटा दीजिए, बाकी जो एरिया है वो देखेंगे। जो व्हाइट वाला एरिया है तो वहाँ पे देखिए अंदर जो है सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है, बाहर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, राइट। नाउ वी सी द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये जो आपका कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है Na+ और K+ का, और जो आपका अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है एंड बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, अगर ये सारा जो है नेगेटिव चार्ज है एंड ये सारा आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं आपका रेस्टिंग पोटेंशियल, जो कि है -70 मिलीवोल्ट। लिख लीजिए, मैंने आपको पहले कहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअल नीट क्वेश्चन आ चुका है ये, -70 मिलीवोल्ट। देन वी मूव ऑन। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग एन एक्सॉन। अब हम जानेंगे कि हमने एक मेम्ब्रेन के बारे में तो जान लिया कि किस तरीके से आयन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्या गड़बड़ होगी वो हम आगे जाके जानेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से जो है एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और कैसे जनरेट होती है। व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to Na+। Now यहाँ पे NCERT ने थोड़ा सा ब्लंडर क्रिएट किया हुआ है, इन्हें बताया ही नहीं है कि एक्चुअली स्टिमुलस की वजह से ऐसा होता क्यों है। यहाँ पे एक आ गया है कि मान लीजिए एक मेम्ब्रेन है जिसमें ये एक स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे Na+ K+ वाला पंप है, ये स्पेसिफिकली Na+ वाला पंप है जो कि Na+ को अब अंदर आने देगा। तो कोई भी स्टिमुलस जब जहाँ पे लगेगा तो वो उसे -70 मिलीवोल्ट को कंपनसेट कर देगा। कैसे कर देगा? नाउ इमेजिन यहाँ पे चाहिए नेगेटिव ऑफ 70 मिलीवोल्ट। किसी भी चीज का पोटेंशियल कितना होता है एट इन्फिनिटी या फिर एट रेस्टिंग स्टेज? इट इज 0 वोल्ट या फिर 0 मिलीवोल्ट, क्योंकि आप तो 0 के ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं। सो इट इज 0 मिलीवोल्ट, राइट। तो हम किसी भी चीज से अगर टच करें तो जीरो तक तो वो पहुंचा ही देगा मेम्ब्रेन को, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि वो 0 तक तो पहुंचा ही देगा। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -70 ना, तो -70 को कंपनसेट कर देता है
और वहाँ पे ये जो है सोडियम पंप ऑन हो जाता है। सोडियम पंप के ऑन होते ही सारा का सारा सोडियम जितना भी बाहर था बाय डिफ्यूजन सारे के सारे अंदर आने स्टार्ट होते हैं। अब अंदर आएंगे तो होगा क्या, अंदर जैसे ही आए सोडियम सारे के सारे तुरंत अंदर पहुंच गए एंड बाहर अब नेगेटिवली चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया एंड अंदर बहुत सारे Na+ हो गए तो अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लो करता है, उसके अंदर कोई भी चीज़ है वो डिफ्यूजन के थ्रू पूरी के पूरी मेम्ब्रेन में फैलती रहेगी। तो जो Na+ है वो इस पार्ट में तो आ गया क्योंकि जो पंप था वो यहीं पे था, लेकिन आगे आप देख सकते हैं सारा नेगेटिव ही नेगेटिव चार्ज है तो वो वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा बाय डिफ्यूजन। तो अब ये जो है Na+ यहाँ पे मूव करके आप देख सकते हैं 2 एरो दिए हुए हैं, ये Na+ इधर गया, ये Na+ इधर गया। तो ये Na+ जैसे ही आगे मूव करता है बाहर का पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर जाता है, राइट, बाहर का पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। तो जो इम्पल्स है वो जंप कर रही है फ्रॉम हियर टू हियर, नाउ यहाँ से आगे जाएगी देन यहाँ से आगे जाएगी एंड इम्पल्स पूरी की पूरी मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरीके से पास हो जाएगी। सो दिस इज द वे, यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम का पंप है उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसकी वजह से ही जो नर्व का इम्पल्स है वो जनरेट होता है एंड आगे जो डिफ्यूजन है इन द साइटोप्लाज्म उसकी वजह से वो आगे बढ़ता रहता है। एंड फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो तो इस तरीके से Na+ से भर जाएगा। तो इस बात को कंपनसेट करने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि एनर्जी का यूज करके वापस 3 Na+ को बाहर और 2 K+ को अंदर ले लेगा, जिसकी वजह से वापस से ये रेस्टिंग स्टेट पे आ जाएगा और बाहर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और अंदर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा पोलराइज्ड एंड नॉन पोलराइज्ड स्टेट है वो आता है। हम वैसे तो हमेशा एनसीईआरटी को पहले रीड करते हैं देन उसको एक्सप्लेन करते हैं, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को पहले किया है एंड वी हैव डिलेड द एनसीईआरटी रीडिंग फॉर द फर्दर। This is because the language of the NCERT is a little confusing and you might get confused and do not understand the explanation later. तो इसलिए हमने explanation को पहले समझाया, but now we are going to read the NCERT and understand each and every word, each and every line of the NCERT, because NCERT, as you know, is the Bible for biology in both class 11th and class 12th, right? So अब हम चलते हैं NCERT reading. When a stimulus is applied at a site on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to Na+. As I have mentioned, always keep the NCERT with you when you are watching the video. This will help you get the points really easily and make it easy for you to underline the lines also, right? This leads to a rapid influx of Na+ followed by the reversal of the polarity at that site. यानी कि we are going to just reverse the polarity of the membrane at the specific site. ये कैसे होता है, Na+ अंदर आ जाते हैं, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, रिवर्स, जैसा कि वो रेस्टिंग स्टेट पे था उसके रिवर्स हो जाता है। That is, the outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner side becomes positively charged, जैसे कि मैंने आपको बताया। The polarity of the membrane at the site A thus reversed and hence depolarized. यानी कि पहले क्या था, polarized state पे थी, अब रिवर्स हो गया तो हम उसे depolarized कहते हैं। However, चार्ज का डिफरेंस डेफिनेटली अभी भी है, चार्ज जो है वो गया नहीं है, बट क्योंकि ये पहले के रिवर्स है इसलिए उसे डीपोलराइज्ड स्टेट में कहते हैं, राइट। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल, यानी कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए। साइट ए कौन सी है, जहां पे डीपोलराइजेशन हो गया है। यानी कि अगर एक्शन पोटेंशियल का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप नॉर्मली एज अ नॉर्मल लैंग्वेज कैसे याद रखेंगे कि साइड ए का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि उस साइड का पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे डीपोलराइजेशन हो चुका है। दिस इज द कॉमन वन। आप इसको डीपोलराइजेशन को अगर समझते हैं पहले से, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो अगर डीपोलराइजेशन को समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी जगह का पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे डीपोलराइजेशन हो चुका हो उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, which is in fact termed as the nerve impulse। यानी कि वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, एक्शन पोटेंशियल क्या जनरेट हुआ है, यानी कि एक चार्ज डिफरेंस जो कि रिवर्स है ऑफ रेस्टिंग, उसे कहते हैं आपका नर्व इम्पल्स। तो आप अब समझ गए नर्व इम्पल्स एक्चुअली जनरेट कैसे हुई थी। अब ये जो है आगे बढ़ेगी कैसे, एट साइट्स इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन, यानी कि साइट बी जो आगे वाली थी पिंक वाली, आप अपनी एनसीईआरटी अगर साथ में लेके बैठे हो तो उसमें देख सकते हैं, मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज on the outer surface and a negative charge on the inner surface, जैसा कि पहले था क्योंकि अभी तो वहाँ पे पहुँचा नहीं है Na+। As a result, a current flows on the inner surface from the site A to B।
ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम द साइट बी टू ए, यानी कि क्या होता है कि साइट बी पे एज अ रिजल्ट करंट फ्लोज, यानी कि जो करंट है, करंट किसे कहते हैं, यानी कि चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। जो जो चार्ज का फ्लो है वो होता है फ्रॉम ए टू बी इन द इनर साइड, और आउटर साइड पे देखिए तो बी से ए होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, हम नेगेटिव चार्ज को कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ द करंट, यानी कि हमने कभी भी पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज अगर आगे जाएगा तो हमेशा दूसरा चार्ज जो है दूसरी साइड पे वो पीछे आएगा। लाइक लेट मी मेक इट फॉर यू, ये ए है, ये बी है, अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उठ के यहाँ चला गया ये पॉजिटिव, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इस साइड से वापस इधर आना चाहिए, तभी तो एक सर्किट कंप्लीट होगा ना, तभी तो पूरा का पूरा जो सर्किट है ऑफ करंट फ्लो वो कंप्लीट हो पाएगा। Hence, the polarity at the site is reversed and the action potential is generated at site B, यानी कि अब action potential site B पे आ चुका है। Thus, the impulse यानी कि action potential generated at site B arrives at site. Hence, the polarity at the site A is reversed and action potential is generated at site B. Thus, the impulse यानी कि action potential generated at site A arrives at site B, यानी कि साइट A पे जो action potential generate हुआ था किसी भी stimulus के लगने की वजह से, वो अब साइट B पे पहुंच चुका है। The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted, यानी कि इसी तरीके का सीक्वेंस आगे भी चलता रहेगा। B है, फिर आगे एक और साइट आ जाएगी C, वहाँ पे भी फिर जो Na+ है वो आगे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो मेम्ब्रेन के अंदर है वो आगे बढ़ेगी और मेम्ब्रेन के बाहर है वो पीछे जाएगी। The rise in the stimulus induces permeability of Na+ is extremely short lived। जो स्टिमुलस है वो आपका बस थोड़ी सी एकदम मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए ही इम्पल्स को जनरेट करता है एंड फिर वो आगे चली जाती है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। इट इज क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमेबिलिटी ऑफ K+, यानी कि जो पोटेशियम है उसका परमेबिलिटी भी तुरंत ही बढ़ जाता है, जैसे ही नर्व इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ती है वैसे ही K+ का पंप ऑन हो जाता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड K+ डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि K+ जो है तुरंत मेम्ब्रेन के बाहर जाता है एंड रेस्टिंग पोटेंशियल को वापस से वैसा ही रेस्टिंग पोटेंशियल को वापस से रीस्टोर करता है। रीस्टोर करने का मतलब क्या है कि वापस से बाहर जो है पॉजिटिवली चार्ज एंड अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है of the membrane at the site of excitation, जहाँ पे excitation हुआ था, and the fiber become once more responsive to further stimulus, यानी कि जैसे ही वापस से resting potential आया वैसे ही next stimulus के लिए जो आपका नर्व है वो रेडी हो गया है, यानी कि अब उसमें नया स्टिमुलस डाला जा सकता है। now यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से नर्व में यानी कि न्यूरॉन में जो आपका इम्पल्स है वो जनरेट होता है, किस तरीके से Na+ के डिफ्यूजन के कारण या फिर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो है वो आगे जनरेट होता है। तो हिट द लाइक बटन प्लीज एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, दिस विल हेल्प मी अ लॉट टू मेक मोर वीडियोस एंड आप तक और ज़्यादा वीडियो को पहुंचा सके, राइट। देन वी आर गोइंग टू नो कि किस तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसमिशन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक ही चीज में फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जबकि ट्रांसमिशन का मतलब होता है फ्रॉम वन थिंग टू अदर। यानी कि जैसे कि आप अगर इम्पल्स के केस में लें तो ट्रांसपोर्ट का मतलब था एक्सॉन में ही एक पार्ट ऑफ द एक्सॉन से दूसरे पार्ट ऑफ द एक्सॉन तक जाना, जबकि ट्रांसमिशन का मतलब होगा स्ट्रेट फ्रॉम वन नर्व टू द अदर नर्व। इतना ज्यादा डिफरेंस एक क्रिएट हो जाएगा। A nerve impulse is transmitted from one neuron to other through the junction called synapses. A synapse is formed by the membrane of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. There are two types of synapses, namely electrical synapses and chemical synapses. At electrical synapses, the membrane of pre and postsynaptic neuron are in very close proximity. The electrical current can flow directly from one neuron into the other across these synapses. The transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single membrane. Impulse transmission across a electrical synapse is always faster than the across a chemical synapse. Electrical synapses are rare in our system. At a chemical synapse, the membrane of the pre and postsynaptic neuron are separated by a fluid-filled space called synaptic cleft.
Do you know how the presynaptic neuron transmit an impulse across the synaptic cleft or the postsynaptic neuron? We are going to learn that later. Chemicals called neurotransmitter are involved in the transmission of impulse of these synapses. तो हमने यहाँ तक NCERT को रीड किया है, मीनिंग ना समझ में आओ तो कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पे बात हो रही है नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना. तो हमने पढ़ा था न्यूरॉन के स्ट्रक्चर वाली वीडियो में कि जो हमारे डेंड्राइट्स हैं वो किसी इम्पल्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल. एक्सॉन टर्मिनल पे मैंने आपको बताया था कि ब्रांचिंग होती है जिसमें आते हैं आपके साइनेप्टिक नॉब. ऑलराइट, तो हमने जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था उसमें देखा था कि जो डेंड्राइट है वो रिसीव करता है हमारे इम्पल्स को, एंड जो एक्सॉन है वो सेंड करता है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन उसकी डेंड्राइट को, राइट. तो हम यहाँ पे देखें कि जो एक्सॉन और डेंड्राइट है उसके बीच में कुछ गैप होता है. उस गैप को कहते हैं आपके साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, अगर उसके साइज स्ट्रक्चर को मिला दिया जाए. अब जो साइनेप्स है उसका जो साइज है, यानी कि एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट के बीच का जो गैप है, इफ दैट इज नियरली 2 नैनोमीटर या फिर उससे कम, नैनोमीटर की बात कर रहा हूँ, दैट इज 10⁻⁹ मीटर्स. तो अगर इतना छोटा जो गैप है साइनेप्स है वो अगर इतना छोटा है, तब जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनेगा. यानी कि जिस तरीके से एक्सॉन के अंदर ही जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इम्पल्स ऐसे 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 कूद रहा था, वैसे यहाँ पे भी जो है यहाँ से यहाँ पे सीधा जंप करके चला जाएगा. देयर विल बी नो सच डिफरेंस इफ द गैप इज लेस देन या फिर नियरली 2 नैनोमीटर. लेकिन जो गैप है, अगर वो गैप बढ़ के आपका हो जाता है मोर देन 10 नैनोमीटर या फिर कह सकते हैं नियरली 20 नैनोमीटर, जो तो उनमें इतना ज़्यादा गैप हो जाता है कि एक यहाँ पे खत्म हुआ तो दूसरा इतना दूर है. अब ये जंप कर करके इतना सा जा रहा था तो यहाँ से ही जंप करके वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, राइट. तो होता क्या है, यहाँ तक ही गया एंड देन यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज करता है. जो केमिकल्स जो है, केमिकल्स तो पूरे में अपना मतलब ट्रेवल कर सकते हैं. देन उन वो केमिकल्स जो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मिलकर धीरे धीरे जो है नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट तक पहुंचते हैं, एंड देन उस डेंड्राइट पे वो अगेन नेक्स्ट इम्पल्स को जनरेट करते हैं, एंड देन दैट मूव्स ऑन इन द न्यूरॉन. तो यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क करते हैं, यानी वो केमिकल्स जो कि नेक्स्ट मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करेंगे, राइट. तो हियर वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल that this is the ending of an axon and this is the acceptor part of a dendrite. Here first of all we can see in the axon there is a myelin sheath, the axon terminal where there are some vesicles you can see here. These vesicles, जब इन vesicles के पास impulse पहुंचती है तो आसपास की जितने भी एंडोप्लाज्मिक तो आसपास जितना भी एरिया होता है उससे कैल्शियम जो है इन वेसाइकल्स के अंदर आता है. इन वेसाइकल्स के अंदर भरे जो होते हैं वो होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है धीरे धीरे इन वेसाइकल्स में ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं एज द कैल्शियम आयन इंक्रीजेज. कैल्शियम के बढ़ने से धीरे धीरे ये वेसाइकल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि ये मेम्ब्रेन के पास पहुँच जाते हैं, लास्ट में बर्स्ट हो जाते हैं. इनकी बर्स्टिंग की वजह से सारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, एंड वो जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर है वो डेंड्राइट के रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है. जब रिसेप्टर पे ये जाके अटैच होगा तो रिसेप्टर जो है गेट को खोल देगा. वो गेट कौन सा होगा आपका, दैट वुड बी सोडियम पंप, यानी कि एक इम्पल्स जनरेट हो चुकी है आपकी डेंड्राइट पे, यानी कि नेक्स्ट न्यूरॉन पे. इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होते हैं, नेक्स्ट जो इम्पल्स है वो जनरेट करवाते हैं इन द नेक्स्ट न्यूरॉन. सो यहाँ पे हम एक और बात जाननी चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर. डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे कि गाबा है, आपका एसिटाइल कोलिन है, बट द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन फॉर यू, जो कि इम्पॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 11th एंड नीट, वो है आपका एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन या फिर ACH. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर और इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो आप इसको सबसे ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे. गाबा वगैरह जो है आपके ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इन इनहिबिशन मोर देन आपका एक्साइटेशन, और नोवाक्रेन एंड जाइलोक्रेन हैं आपके, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह यूज़ होते हैं बॉडी में कभी कभी, लेकिन दे आर मोस्टली यूज्ड एज एनेस्थेटिक एंड दे आर ऑल्सो इनहिबिटरी. उनका भी इनहिबिटरी रोल है, यानी कि वो क्या करेंगे, जो नेक्स्ट इम्पल्स है उसको कुछ इस तरीके से जनरेट करेंगे कि वो जो फाइनल इफेक्ट दे वो इनहिबिशन का हो, ना कि एक्साइटेशन का, राइट.
तो हमने यहाँ तक जाना कि किस तरीके से जो इम्पल्स है वो जनरेट होती है इस पार्ट में, नर्व में, एंड वो आगे जाके किस तरीके से नर्व में यानी एक्सॉन में ट्रेवल करती है। एंड साथ ही साथ ये जाना कि अगर एक नर्व से दूसरी नर्व तक उस इम्पल्स को जाना हो तो या तो इलेक्ट्रिकली जा सकती है सिंपली, जैसे कि वो एक एक्सॉन में ट्रेवल करती है, या फिर वो जा सकती है बाय केमिकल मीन्स यानी कि न्यूरो के थ्रू। न्यूरो सिंपली न्यूरो यानी कि आपका नर्व, एंड ट्रांसमीटर यानी कि कुछ केमिकल्स। तो न्यूरो जो कि एक इम्पल्स को एक नर्व से दूसरी नर्व तक ले जाएगी अगर गैप मोर देन 10 नैनोमीटर हुआ। तो अगर लेस देन 2 नैनोमीटर या नियरली 2 नैनोमीटर हुआ तो जो है इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट हो जाएगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सेंट्रल न्यूरस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। एंड ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, सो नेक्स्ट वीडियो विल बी टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और इस वीडियो को शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी जो है ये चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी के थ्रू अंडरस्टैंड कर पाए। थैंक यू वेरी मच।